हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शॉल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 3 इन द अर्लियर सिटी। तो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है इन द अर्लियर सिटीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, तो इसे हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। Very often, old buildings have a story to tell. Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan. To them, it seemed like a mound that was a rich source of ready-made high-quality bricks. So they carried off thousands of bricks from the walls of the old buildings of the city to build railway lines. Many buildings were completely destroyed. Then, about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. As this was the first time to be discovered, all other sites from where similar buildings and other things were found were destroyed were described as Harappan. These cities developed about 4700 years ago. तो क्या कह रहे हैं कि वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल, यानी कि बहुत सारी जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं उनके पास क्या एक स्टोरी होती है हमें बताने के लिए। तो क्या होता है, नियरली 150 ईयर्स पहले, 150 यानी 150 ईयर्स पहले की बात है कि जब रेलवे लाइंस को क्या बनाया जा रहा था फर्स्ट टाइम, कहाँ, पंजाब में। तो जो इंजीनियर्स थे उन्होंने देखा वो कहाँ, हड़प्पा के साइड यानी पाकिस्तान वाले इलाके में गए और वहाँ जाकर बनाने लगे। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत बड़ा माउंट है, बहुत बड़ा टीला है। तो वहाँ पे क्या बहुत सारी गुड क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के ब्रिक्स ऐसे मिल रहे थे। तो उन्होंने वहाँ से 1000 से भी ज़्यादा ब्रिक्स उठा ली, 1000 से भी ईंट उठा ली और फिर रेलवे लाइंस बना दी। तो बहुत सारी जो बिल्डिंग्स थी वो ऐसे ही कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी। कैसे? ब्रिक निकाल के। फिर 80 ईयर्स बाद पता चला आर्कियोलॉजिस्ट को कि वो जो साइट है वो बहुत ही बड़ी, एक बहुत ही ज़्यादा ओल्डेस्ट सिटी है उस कॉन्टिनेंट की, और वो सिटी पहली सिटी थी जिसे डिस्कवर्ड करा गया था। और वो जो सिटी है उसको क्या, हड़प्पन की तरह हड़प्पन नाम देके डिस्क्राइब करा गया, और वो बताया गया कि वो 47 ईयर्स पहले डेवलप हुई थी। तो ये जो टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है what was special about these cities. Many of these cities were divided into two or more parts. Usually the parts to the west was smaller but higher. Archaeologists describe this as the citadel. Generally, the part to the east was larger but lower. This is called lower town. Very often, walls of baked brick were built around each part. The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years. The bricks were laid in an interlocking patterns, and that made the wall strong. In some cities, special buildings were constructed on the citadel. For example, in Mohenjo-daro, a very special tank, which archaeologists call the Great Bath, was built in this area. This was lined with bricks, coated with plaster, and made watertight with a layer of natural tar. There were steps leading down to it from two sides, while there were rooms on all sides. Water was probably brought in from a well and drained out after use. Perhaps important people took a dip in this tank on a special occasion. Other cities such as Kalibangan and Lothal had fire altars where
sacrifices may have been performed, and some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborate storehouses. तो क्या कहा जा रहा है, बहुत सारी जो सिटीज़ हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड करा गया, जैसे कि एक पार्ट वेस्ट और एक छोटा, मतलब कि यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर एंड हायर। बोला गया कि जो सिटी थी उनको दो पार्ट में डिवाइड करना है, ईस्ट और वेस्ट। जो वेस्ट पार्ट होगा वो क्या, वो थोड़ा सा स्मॉलर होगा और हायर होगा, यानी कि जो वेस्ट पार्ट है वो क्या, वो स्मॉलर और हायर यानी ऊंचा होगा लेकिन छोटा होगा, ठीक है। और जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या, उन्हें स्किटैडल भी क्या उनको डिस्क्राइब करा। बोला कि जो जनरली जो पार्ट होता है ईस्ट का वो क्या, वो बड़ा होता है लेकिन लोअर होता है, इसलिए उन्हें क्या लोअर टाउन कहते हैं। यानी कि सिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक है ईस्ट एक है वेस्ट। तो वेस्ट पार्ट छोटा होता है लेकिन हाइट में होता है, हायर होता है, और ईस्ट पार्ट बड़ा होता है लेकिन छोटा होता है, लेकिन बड़ा होता है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या लोअर टाउन भी कहते हैं। बहुत सारे इन जो जगह बनी, इनमें से जो बहुत सारी जो जगह हैं वो काफ़ी बढ़िया ब्रिक से बेक्ड, यानी ब्रिक्स को क्या बेक करके अच्छे से बनाया गया ताकि वो दीवारों को क्या इंटरलॉक कर ले और सारी वॉल्स स्ट्रांगली बनी रहे। और कई सारी सिटीज़ में एक स्पेशल बिल्डिंग्स बनती रहती है, जैसे कि मोहनजोदड़ो में एक बहुत ही स्पेशल टैंक है जहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट है उसे कहते हैं ग्रेट बाथ है। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ पे क्या पानी भरा है, यानी उसे ग्रेट बाथ कहते हैं। वो जो बिल्डिंग है उसे उस एरिया में बनाई गई है और इसे क्या ब्रिक से बनाई गई और इसे कोटेड करा गया है प्लास्टर से, और इसको वाटर टाइट बनाया गया जिससे पानी इधर से बाहर ना जा सके, उसके अंदर अगर रखा जाए तो उससे पानी लीक ना हो सके। और वहाँ पे स्टेप्स यानी सीढ़ियाँ बनी जिससे दो साइड, एक इस साइड बनी, एक दूसरी साइड उसके क्या सीढ़ियाँ भी बनी हर जगह। और वो वहाँ पे क्या वाटर जो है वो कुएं से लाया जाता है और उसके अंदर डाल दिया जाता है, और उसमें ड्रेन यानी नालियाँ भी बनी हुई हैं। जो पीपल हैं उन्होंने क्या उनको डिप मतलब कि जो इम्पोर्टेंट पीपल होते थे वो लोग क्या उसमें डुबकी लगाते थे, उसी में नहाते थे। और स्पेशल ओकेशंस में, यानी कि कोई स्पेशल त्यौहार आया तभी वो लोग क्या उसमें डुबकी लगाते हैं। और कुछ सिटीज़ थी जैसे कालीबंगन, लोथल, वहाँ पे फायर अल्टार्स थे जहाँ पे सैक्रिफाइसेस, जहाँ पे कई सारे सैक्रिफाइसेस होते थे वहाँ परफॉर्म किए जाते थे। और जो सिटीज़ हो गई जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, ये सब क्या स्टोर हाउस भी क्या इनमें बने हुए थे। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, तो इससे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लीजिए जो पिक्चर में ये जो पिक्चर है इसमें क्या ड्रेन, और इसमें पूरा जो यही है क्या ग्रेट बाथ, यानी कि जो ग्रेट बाथ की हम लोग बात कर रहे थे वो ग्रेट बाथ यही है जो लोगों बनाते थे। जैसे कि एक सीढ़ी इस तरफ है और एक सीढ़ी इस तरफ है, यहाँ से क्या इम्पोर्टेंट पीपल्स जो होते थे वो आते थे यहाँ पे नहाते थे, और नहाने बाद जो स्पेशल ओकेशंस था उसी में आके नहाते थे। यहाँ पे क्या ड्रेन सिस्टम भी था, और वेल जो कुएं होते थे वहाँ से पानी आता था इनके अंदर। और तो अब जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है हाउस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट। तो इससे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जनरली हाउसेस वर आइदर 1 or 2 stories high with rooms built around a courtyard. Most houses had a separate bathing area and some had wells to supply water. Many of these cities had covered drain. Notice how carefully these were laid out in straight lines. Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. Very often, drains in houses were connected to those on the streets, and smaller drains led into bigger ones. As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. All three houses, drains, and streets were probably planned and built at the same time.
जो क्या कहा जाता है कि यहाँ पे जो हाउसेस थे उनमें वो जो जितने भी हाउसेस बने थे वो 1 या 2 स्टोरीज यानी 1 खंड या 2 खंड के ही बने थे, उससे भी ज़्यादा हाई बने थे। उसमें क्या बहुत सारे मतलब कि रूम बने थे, कोर्ट यार्ड बने थे, कई सारे हाउस में सेपरेट यानी अलग से उनका क्या बाथिंग एरिया भी था, यानी उनका नहाने धोने का जो एरिया है वो भी क्या अलग से पूरा उन्हीं के घर में अलग से था। और वहाँ पे नल से कुएं से पानी भी सप्लाई होता था, यानी कि जो कुआं है उसकी भी कुएं से वहाँ पे क्या उनके घर में पानी भी सप्लाई हो जाता था। बहुत सारी सिटी थी जो कि ड्रेन सिस्टम से पूरी कवर हो रखी थी। और ये जो अगर मतलब इसको केयरफुली नोटिस करें तो इसमें हम लोगों को स्ट्रेट लाइन दिख रही है। इसमें क्या होगा कि हम लोग जो जितनी भी इसमें ईच ड्रेन थी वो क्या इसमें जेंटल स्लोप यानी कि जो पानी जो नाली है उनके उसमें उसको बहाने के लिए कोई सिस्टम तो था नहीं, तो जो नाली है उसको वो क्या स्लोप में बनी थी, यानी कि पानी जो है अगर वो स्लोप से जाएगा तो जिस तरफ ढलान होगी उसी तरफ पानी बहेगा। तो वो लोग ऐसे डिज़ाइन करते थे ताकि जो पानी वो स्लोप में जा कर के गंदा पानी चला जाए और वो वापस ना आ सके, ठीक है। तो इसलिए वो लोग क्या मतलब कि एकदम ऐसा भी डिज़ाइन करते थे जिसकी वजह से जो स्लोप का भी इस्तेमाल कर सके। और बहुत सारी जो ड्रेन्स थी वो क्या इंटरकनेक्टेड थी स्ट्रीट की स्मॉलर ड्रेन्स में, और स्मॉलर ड्रेन्स की कहाँ जाती थी बिगर वंस में, यानी कि जैसे एक स्ट्रीट हो गई तो अब एक स्ट्रीट की मेन नाली है और उस नाली में सारी घर की नालियाँ जितनी भी है घर की ड्रेन वो सारी उसमें जाके जुड़ी हुई है, यानी सारे घरों का पानी उसी उन ड्रेन से जाकर के उस एक मेन ड्रेन में जाता है जो कि सिटी में लगी है। और वो सिटी की ड्रेन का जो पानी है वो जाता है एक बड़ी ड्रेन में, वहाँ जाके वो वहाँ पे मिल जाता है। तो ऐसे उन लोगों ने क्या सिस्टम बना रखे थे, वो सारी इंटरकनेक्टेड थी। और जो ड्रेन थी वो क्या कवर्ड थी और उनमें इंस्पेक्शन करा गया और होल भी उसमें क्या प्रोवाइड थे ताकि उन्हें क्लीन भी करा जा सके, यानी कि ऐसी नाली कोई खुली हुली नहीं थी, वो क्या एकदम कवर भी थी और उनमें बीच बीच में होल्स थे जिनकी वजह से उनको क्लीन भी करा जा सके। बहुत सारे जैसे 3 हाउसेज ड्रेन एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान टू बिल्ड द सेम टाइम, यानी जब भी घर बनाए जाते थे तो ये सब ड्रेन जितनी भी हो गई इन सबको पहले से ही क्या प्लान करके बनाया जाता था कि कहाँ कहाँ ड्रेन सिस्टम होगा कहाँ कहाँ नहीं होगा। तो ये जो टॉपिक था ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाइफ इन द सिटी, तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अ हरप्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। देयर वर पीपल हु प्लान द construction of special buildings in the city. These were probably the rulers. It is likely that the rulers sent people to distant lands to get metal, precious stones, and other things that they wanted. They may have kept the most valuable objects, such as ornaments of gold and silver, or beautiful beads of for themselves. And there were scribes, people who knew how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other materials that have not survived. Besides, there were men and women craftsperson making all kind of things either in their own homes or in special workshops. People were traveling to distant lands to or returning with raw materials and perhaps stories. Many terracotta toys have been found and children must have played with these। तो क्या कहा जा रहा है कि जो हड़प्पा सिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा बिजी प्लेस थी। यहाँ पे जो पीपल थे उन लोगों ने क्या जितना भी कंस्ट्रक्शन है स्पेशल बिल्डिंग्स का जो कि सिटी में वो सब प्लान करके बनाया गया एकदम मैप के थ्रू। और ये जितने भी प्रोबेबली रूलर्स थे यहाँ के वो सब क्या वो रूलर्स सेंट टू डिस्टेंस गेट मेटल प्रीशियस स्टोन, यानी कि यहाँ पे माइनिंग भी होती थी। तो यहाँ पे जितने भी स्टोन है वो सब क्या बहुत ही प्रीशियस बहुत ही स्पेशल स्टोन भी मिले जो कि सारी थिंग्स मिली जो कि उनकी
थी और इन्होंने इन सब चीज़ों को मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स माना, जैसे ऑर्नामेंट्स हो गए किसके, गोल्ड के, सिल्वर्स के, और जो ब्यूटीफुल बीड्स हो गए उनको क्या उन्हें अपने लिए एक वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स माना और कहा, उन्हें डिस्क्राइब करा कि जो पीपल है जो उन्हें जानते हैं वो क्या उसमें राइट करे, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other material that have not survived। यानी कि वो सारी चीज़ क्या, जैसे कि इंस्क्रिप्शन, मैन्युस्क्रिप्ट, इन सब चीज़ों पे भी क्या वो लोग राइट करवा देते थे, लिखवा देते थे। और जो वो मैन हो गए, वुमेन हो गए, क्राफ्ट पर्सन हो गए, जिन्होंने ये सारी चीज़ बनाए, उन सबको क्या आइदर इन देयर ओन होम्स और स्पेशल वर्कशॉप, यानी कि ये सारे जो चीज़ें बनाते थे ये खुद के घर में या इनकी खुद की वर्कशॉप होती थी, वहाँ जाके बनाते थे। और जो लोग हैं वो यहाँ से ट्रैवलिंग करते थे इस लैंड से दूसरी लैंड और रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल्स परहैप्स स्टोरीज, यानी कि ये इधर से उधर घूमते फिरते थे और जब लौटते थे तो इनके पास रॉ मटेरियल्स हो जाता था, काफ़ी स्टोरीज भी हो जाती थी और बहुत सारे टेराकोटा टॉयज भी इनको क्या मिल जाते थे चिल्ड्रन के लिए, जिनके चिल्ड्रन इनसे खेलते थे। टेराकोटा एक क्या होता है, एक टॉय होता है। जैसा ये पिक्चर में देख पा रहे होंगे आप, ये जो टॉयज है सब क्या है, टेराकोटा टॉयज, यानी टेराकोटा एक चीज़ है, उसी चीज़ से क्या ये सारे टॉयज बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, इसे भी हम लोग इसी वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं। Let us look at some of the objects that were made and found in Harappan cities. Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shell, and metal, including copper, bronze, gold, and silver. Copper and bronze were used to make tools, weapons, ornaments, and vessels. Gold and silver were used to make ornaments and vessels. Perhaps the most striking finds are those of beads, weights, and blades. The Harappan also made seals out of stone. These are generally rectangular. See illustration on page number 25 and usually have an animal carved of them. The Harappan also made pots with beautiful black designs such as the one shown on page 6. Cotton was probably grown at Mehergarh from about 7,000 years ago. Actual pieces of cloth were found attached to the lid of silver vase and some copper objects at Mohenjo-daro. Archaeologists have also found spindle wheels made of terracotta and fancy. These were used to spin thread. Many of the things that were produced were probably the work of a specialist. A specialist is a person who is trained to do only one kind of work, for example, cutting stone or polishing beads or carving seals. Look at the illustration, page number 26, and see how well the face is carved and how carefully the beard is shown. This must have been the work of an expert craft person. Not everybody could have been a specialist. We do not know whether only men were specialists or only women were specialists. Perhaps some women and men have been specialists. तो क्या कहा जा रहा है कि न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, यानी कि हम लोग ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको देखना है, ये सारे ऑब्जेक्ट कहाँ हरप्पन सिटी में फाउंड मतलब कि ढूंढे मिले हैं। और ये जितने भी थिंग्स है ये सब किससे बनी हुई है, ये सब आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि सारी स्टोन से बनी हुई, शेल से बनी हुई, मेटल से बनी हुई, कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर, इन सब से भी सारी चीज़ें बनी हुई हैं। कॉपर, ब्रोंज जो है इन्हें क्या यूज़ करा जाता था टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स, वेसल्स बनाने के लिए। और जो गोल्ड और सिल्वर है इसे हम लोग ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
परहैप्स जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड हुई हैं वो है जैसे बीड्स, वेट्स और ब्लेड्स। जो हड़प्पा सिटी है वो किससे, वो सील्स और स्टोन से ही बनाती थी। और जो जितनी भी जनरली रेक्टेंगुलर चीज़ें, जैसे कि पेज नंबर 25 में दिया गया हुआ है, तो ये 25, तो ये जो रेक्टेंगुलर चीज़ें हैं यहाँ पर ये वाली, जिसमें एक ये कोई एनिमल बना हुआ है, इसको क्या, ये एक क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर इलस्ट्रेशन है। तो इसे भी क्या, एनिमल कार्व्ड ऑन देम, यानी कि इस रेक्टेंगुलर स्टोन में भी वो लोग क्या एनिमल का कार्व कर देते थे, उसका चित्र बना देते थे। और जो हड़प्पा है वो क्या, उनके पास ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन जैसे पेज नंबर 6 में शो करी गई हैं। तो ऐसी भी डिज़ाइन उनके पास होती थी, जैसे पॉट्स में, यानी कि उनके पास क्या पॉट होते थे जिनमें वो लोग ब्यूटीफुल सी ब्लैक डिज़ाइन को क्या लगा देते हैं। और जो कॉटन है वो क्या 7000 ईयर्स पहले उगाया गया था, कहाँ पर, मेहरगढ़ में। और जो एक्चुअल पीस है क्लोथ का वो कहाँ से, उसी में अटैच हुआ था सिल्वर वेस और कॉपर ऑब्जेक्ट्स, कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में। आर्कियोलॉजिस्ट ने भी और क्या फाइंड करा, स्पाइंडल वोल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फैंस, दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड, यानी कि जो थ्रेड उसको स्पिन करने के लिए भी ये जो टेराकोटा फैंस है ये इस्तेमाल में आते थे। और में से बहुत सारी जो थिंग्स है जो कि प्रोड्यूस होती वो क्या, वो सारी चीज़ें स्पेशलिस्ट बनाते थे। स्पेशलिस्ट क्या होता था, स्पेशलिस्ट एक पर्सन होता है जो कि एक ही काम करने के लिए क्या ट्रेन करा जाता है, कि वो उसको ट्रेनिंग दी जाती खाली एक काम करने के लिए, और उस काम में इतना स्पेशलिस्ट हो जाता कि और कोई उसके टक्कर का नहीं होता। जैसे कि कटिंग स्टोन, स्टोन को काटना, बीड्स को पॉलिश करना और कार्विंग सील्स, इन सब चीज़ों में क्या इस सारी चीज़ करना। तो ये क्या स्पेशलिस्ट का काम होता है। तो पेज नंबर 26 में एक इलस्ट्रेशन है, उसे देखना है, समझना है कि वो क्या एक किसने, एक वो बियर्डमैन एक स्पेशलिस्ट ने ही बनाया। और ये सारे जो काम है वो काफ़ी केयरफुली जो बियर्ड है उसकी शोन की गई है, जो बियर्डमैन है। और जो ये जो सारा वर्क है वो सब क्या एक एक्सपर्ट ही क्राफ्ट पर्सन बना पाते हैं। और कभी कहा नहीं गया कि जो मैन है वही स्पेशलिस्ट होता है या सिर्फ वुमेन स्पेशलिस्ट होती है या दोनों स्पेशलिस्ट होते हैं। कहा नहीं जा पा रहा है कि कौन स्पेशलिस्ट होता है, कौन स्पेशलिस्ट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, तो उससे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।